Hello student, today I will tell you the story of Anne Frank. This story is written by Anne Frank from the diary of Anne Frank. Annie lies Mary Anne Frank in 1929, 12 June, February and March was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in the Germany but were trapped when the Nazis occupation extended into the Netherlands. As precautions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building. After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen Belsen within days of her sister. Margot Frank, her father Otto, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended to find that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12th June in 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. There have also been several films, television and the theatrical production and even an opera based on the diary. Described as the work of the mature and the insightful mind, the diary provides an intimate examination of a daily life under the Nazis' occupation. Anne Frank has become one of the most renowned and the discussed of the Holocaust victim. That is some fact about Anne Frank. Now we will start the video, we will start the chapter also, and we will find who was Anne Frank and how she was died. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. अपनी डायरी में एनी फ्रैंक लिखती हुई ये कहती है कि डायरी लिखना भी एक विचित्र, एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो जाता है। डायरी लिखते टाइम एक अलग सा आप महसूस करते हैं। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नेदर आई नोर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग ऑफ अ 13 years old स्कूल गर्ल। एनी फ्रैंक लिखती है नॉट ओनली बिकॉज आई हैव रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि डायरी लिखना में बड़ा मज़ा आ रहा है, डायरी लिखना एक अलग अनुभव है, बल्कि मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि जब कोई मेरी 13 साल की इस लड़की का एक लेख पढ़ेगा, डायरी को पढ़ेगा, तो जान पाएगा कि इस 13 साल की लड़की में कौन कौन सी इंटरेस्टिंग उसकी फीलिंग थी, कौन कौन से इंटरेस्टिंग उसके फैक्ट थे, और इस 13 साल की बच्ची के बारे में वो जान पाएगा। ओह वेल इट डज़ नॉट मैटर, और ये कोई सारी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं कि ये अच्छा महसूस होगा या अच्छा लिखा होगा। आई फील लाइक राइटिंग
मुझे लिखना अच्छा लगता है, महसूस करती हूँ मैं जब राइटिंग करती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। और जो मेरे सीने में, मेरे अंदर जो सारी बातें हैं, मैं उन सारी बातों को निकाल कर डायरी के थ्रू मैं उस बातों को लिख सकती हूँ। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं है कि मुझे लिखना अच्छा लगता है, बल्कि मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस छोटी सी बच्ची के बारे में, इस 13 साल की लड़की के बारे में जब लोग पढ़ेंगे, जानेंगे मेरे अंदर क्या है, इस चीज़ों को सीखेंगे और जान पाएंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा मेरे लिए। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एनी फ्रैंक लिखती है कि पेपर के अंदर, कागज़ में लोगों से ज़्यादा धैर्य और सब्र होता है और पेशेंस होता है। कोई बात को ऑब्जर्व करने का एक उसके अंदर फैक्ट होता है। आप लिखते टाइम जब आप लिख रहे हो, अपनी सारी फीलिंग्स को अपने पेपर पे उतार रहे हो, आप सारी चीज़ों को लिख रहे हो, तो कोई डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब करने वाला, कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला नहीं है। सिर्फ पेपर और आप अपने विचारों को, अपनी फीलिंग को, अपनी सारी बातों को उसमें उतार सकते हो, लिख सकते हो। यू कैन राइट एनीथिंग विच यू हैव टू राइट। And also paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. क्यों ऐसा कह रही है वो इस वजह से कह रही है पेपर में ज़्यादा पेशेंस और ज़्यादा धैर्य होता है, क्योंकि कह रही है मैंने सोचा, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मैंने ये बात इसलिए कही ऑन वन ऑफ दोज डेज, क्योंकि मुझे अपने उन कुछ दिनों की याद आती है। वो दिन व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं अपने आप को कुछ तनावपूर्ण महसूस करती थी, जब मैं दुख में होती थी, जब मैं कठिनाई में होती थी, जब मैं परेशानी में अपने घर में बैठी हुई होती थी, विथ माई चिन इन माई हैंड, और अपने हाथ को अपनी ठुड्डी पर रखकर सोचती थी। ये उन दिनों की बात मैं कर रही हूँ जब मैं बोर महसूस करती थी। एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मैं कहाँ रुकूँ, कहाँ ठहरूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता था। ये सारी चीज़ें जो है उस दिन को बोर बना देती थी। इसलिए कह रही है कि पेपर में पेशेंस ज़्यादा होता है, क्योंकि वो अपने उस दिन को याद करती है, वो दिन जब वो परेशानी में, कठिनाई में या डिप्रेस्ड होकर, हताश और उदास होकर उसे समझ नहीं आता था कहाँ बैठूं और कहाँ जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और मैं अपने आप को वहाँ रोक पाती थी जहाँ मैं थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा शांति, ऐसी जगह जहाँ पर सुकून हो, उस जगह पर मैं अपने आप को रोक पाती थी। हाँ, पेपर में जो है, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कागज़ में ज़्यादा धैर्य होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, और कह रही है कि and since I am not planning, मेरा कोई ऐसी योजना भी नहीं है कि मैं इस वजह से डायरी लिख रही हूँ कि मेरी डायरी को कोई ना कोई ज़रूर पढ़े, मैं इस वजह से भी डायरी नहीं लिख रही हूँ। Stiff-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real फ्रेंड, मैं इस वजह से लिख रही हूँ क्योंकि मैंने कभी आज तक अपना सच्चा दोस्त नहीं पाया है। मैंने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया है, जो मेरी बातों को सुनती है शांति से, पेशेंस से, धैर्य के साथ, और मैं अपनी सारी बातों को, अपने मन के अंदर की जो सारी बातों को उस डायरी के ज़रिए बाहर निकाल पाती हूँ। इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और बिल्कुल भी मुझे फ़र्क महसूस नहीं होता है, डिफरेंस, अंतर महसूस नहीं होता है कि दोस्त में और इसमें कोई भी अंतर हो। ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त साबित होती है। आफ्टर दैट शी सेड दैट नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड
उसके बाद वो बोलती है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, मैं पॉइंट पर आती हूँ और कहती हूँ, प्रॉम्प्टेड मी अ कीप अ डायरी, मैं डायरी रखना चाहती हूँ। इन द फर्स्ट प्लेस, डायरी को सबसे ऊपर के हिस्से में, सबसे फर्स्ट प्लेस में नंबर 1 पर रखना चाहती हूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं आपको साफ साफ बता दूँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13 years old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची, एक 13 साल की लड़की इस संसार में बिल्कुल अकेली है, अलोन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे प्यार करने वाले मुझे मेरे माता पिता हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 ऐसे मेरे दोस्त हैं, 30 ऐसे लोग हैं जिससे मैं दोस्त बोल सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली लविंग आंट्स एंड गुड होम, मेरा एक परिवार है, मेरी एक आंटी है, एक चाची है। एंड अ गुड होम, मेरा एक बढ़िया सा अच्छा सा घर है, मैं अकेली नहीं हूँ। नो, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, और बात की जाए ज़मीनी स्तर की, एक लेवल की, तो मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास माता पिता है, मेरे पास मेरी बहन है, 30 ऐसे लोग हैं जिसे मैं दोस्त कह सकती हूँ, लेकिन कोई भी मेरे पास मेरा सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट वैन आई एम विथ फ्रेंड इज़ हैविंग गुड टाइम, और हमेशा से मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, मेरा अच्छा समय गुजरता है, अच्छा वो पल होता है, अच्छा वो टाइम होता है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग, मैं अपने आप को इस तरह से नहीं बना पाती, इस तरह से नहीं उभार पाती कि मैं सारी बातें अपने दोस्तों को बता सकूँ। बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, लेकिन जो रोज़ प्रतिदिन होने वाली जो चीज़ें हैं उनको मैं अपने दोस्तों को अक्सर बता दिया करती थी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, लेकिन हम लोगों को, मुझे कभी इतना क्लोज फ्रेंड नहीं मिला। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही वजह है, यही समस्या है कि मैं अपने आप को इस संसार में सबसे अकेला पाती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरे बिल्कुल क्लोज हो, बिल्कुल करीब हो, जिसे मैं अपना दोस्त कह सकूं। मे बी इट्स माई फॉल्ट, और इसका दोषी भी वो अपने आप को बताती है, एनी फ्रैंक, कि अगर मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, तो इसका दोष भी, इसका फॉल्ट भी मेरा ही है। दैट्स वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हमारे जितने भी दोस्त हैं, हम एक दूसरे को कन्फाइड नहीं कर पाते, अपनी सारी बातों को रिवील नहीं कर पाते, सारी बातें उससे बता नहीं पाते। इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, और यही वजह है कि सारी चीज़ें इसी वजह से बदल जाती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये बातें, ये सारी बातें जब हम एक दूसरे को सारी बात लाइबल नहीं हो पाते, एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं, तो हमारी जो विश्वसनीयता है, जो एक दूसरे के ऊपर बिलीव है, वो उतना पक्का नहीं हो पाता है, और जिसे हम लोग बदल भी नहीं पाते हैं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और कह रही है कि यही वजह है कि मैंने डायरी लिखना शुरू कर दिया, ताकि मैं अपने मेरे अंदर की जो सारी बातें हैं, मैं अपना एक दोस्त बना सकूं, एक सच्चा दोस्त जिसे मैं सारी बातें बता सकूं। To change the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the fact in this diary the way most people would do. और एनी फ्रैंक लिखती है कि ये जो कल्पना बन रही है, जो इमेज बन रही है मेरे दोस्त की, इमेजिनेशन मेरे दोस्त की बन रही है। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट, ज़रूरी नहीं कि मैं सारे फैक्ट, सारी बातें उस डायरी में लिखूं जो अक्सर लोग किया करते हैं, जो अक्सर लोग लिखा करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। लेकिन
मैं इस वजह से डायरी लिख रही हूँ कि मैं उसको अपना एक दोस्त बनाकर रखना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग डायरी में अपने फैक्ट लिखते हैं, लाइफ के फैक्ट लिखते हैं और दूसरी फैक्ट लिखते हैं। इस बहुत सारे लोग इस डायरी लिखते हैं दूसरे तरीके से, लेकिन ये डायरी लिख रही है एक दोस्त के रूप में, ऐसा दोस्त जो सारे उसके दिल के मामलों को, उसके मन की बातों को, उसके अंदर की जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको जान सके और वो अपनी सारी बातें जो भरी पड़ी हैं उसको निकाल के अपनी डायरी में लिख सके। ऐसी डायरी जिसे वो अपना दोस्त कह सके और ऐसी डायरी जिसका उसने नाम भी रखा है, नामकरण भी किया है। और ऐसी डायरी जिसका नाम था किटी, उसकी डायरी का नाम क्या था? किटी। एनी फ्रैंक अपनी डायरी लिखती है और 13 साल की वो बच्ची डायरी इस वजह से लिख रही है कि वो उसे अपना दोस्त कह सके। दैट्स एंड ऑफ द वीडियो टुडे। The remaining portion will continue in the next videos. I hope you like the video. If you have any problem, please comment in the comment box. Thank you.